ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Venerable Sri Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me the shelter under his lotus feet. Vandeyam Shri Guru Shri Yudapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sadana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhuvaitam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sacha. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and unto the feet of a Vaishnava. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami along with his elder brother Sanatan Goswami, as well as Raghunath Das, Raghunath Bhatt, Gopal Bhatt, and Srila Jiva Goswami. I offer my respectful obeisances to the Lord Krishna Chaitanya and Lord Nityananda along with Advait Acharya, Gadadhar, Srivas, and other associates. I offer my respectful obeisances to Srimati Radharani and Sri Krishna along with their associates Sri Lalita and Vishakha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. O my dear Krishna, you are a friend of a distress and the source of a creation. You are the master of a gopi and the lover of Radharani. I offer my respectful obeisances unto you. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishubhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like a model golden, and who is the queen of Vrindavan, queen of the Vrindavan, and you are a daughter of a king Vishvanu, and you are very dear to Lord Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. I offer my respectful obeisances unto the all Vaishnavas devotee of the Lord. They can fulfill the desire of everyone, just like a desired tree, and they are full of compassion for the fallen soul. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. I offer my obeisances to the Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Srivas and all the other in the line of devotion. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you so much for joining. और हम आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे जो पॉसिबल हो सकता है तो कृपया अपने जो वीडियो है वो ऑन कर लीजिए so that it becomes more interactive session.
और जो हमारा आज जो है हम लोग बहुत ही अच्छे चर्चा करेंगे मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, जो हम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी एसेंस ऑफ भगवत गीता बुक में से, उसी को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि कोई बताना चाहेगा कि हमने पिछली बार हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने क्या रीड किया था। आई नो 1 वीक का गैप आ गया है, तो हमने अब तक क्या कवर किया है, अगर किसी को याद हो कोई पॉइंट्स। वी आर डिस्कसिंग मटेरियल प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। सो हम लोग क्विकली उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था। सो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो शुरू होता है कि हमारे रियल प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमने जानी थी रियल प्रॉब्लम्स 4 थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। और आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि जो ये मिजरीज होती हैं, इनके साथ में क्या हमें जरूरत क्या है भगवान की खोज करने के लिए। क्यों ना मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं या एक अच्छा पर्सन बनूं। और उसमें हमने ये देखा कि हमें पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम सब जो है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ओनली सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तो सिर्फ अच्छा व्यक्ति बनने से नहीं होगा, क्योंकि अच्छा व्यक्ति बनने के बाद भी उसमें हमें प्रॉब्लम्स, हमें जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है हम उसका सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं। उसमें फिर हमने एग्जांपल्स देखे कि जैसे मोहम्मद अली, he was a boxer, but at the end of his life, towards end, he got Parkinson disease and he could not lift his hand, जबकि वो एक फाइट में बोलता है that I am God, I am most powerful, but at the end he didn't even have a power to lift a small glass. फिर हमने solutions to problems of life को हमने ढूंढा कि क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट इन सब सफरिंग्स को रोक सकती है। उसमें हमने जाना था कि जैसे जैसे हम साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं उसके अपने अपने नुकसान भी हैं। लाइक हमने चर्चा करी थी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, दैट हाउ एडवांसमेंट वी आर क्रिएटिंग सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और फिर हमने चर्चा करी बिग बैंग के बारे में कि ये यूनिवर्स आया कहाँ से, क्या ये सब कुछ बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था या कोई एक बहुत ही बड़ा ब्रेन है जो इसको चला रहा है। तो यहाँ पे हमारी एक, जिसमें हमने साइंटिस्ट के एग्जांपल्स दिए, आइंस्टाइन ने क्या कहा भगवान के बारे में, और वहां पर हमने इसको समाप्त किया था। तो उससे आगे अब बढ़ने से पहले आज जो है हम एक कंपैरिजन करते हैं कि जो सरकार है उसकी क्या ड्यूटीज है और जो गवर्नमेंट, जो यूनिवर्सल लॉज है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेन चला रहा है पूरी सृष्टि को, तो उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो अब हम चाहेंगे आप लोग सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और वी हैव दिस क्वेश्चन, तो आप उसके विल डू डिस्कशन, दिस इज मोर ऑफ अ डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव सेशन। तो कृपया करके you can unmute yourself and let us talk about and find some common things between the government of any country, कोई भी country हो उसकी government और universal government में क्या समझ। होम मिनिस्टर का काम है यूनिवर्सल में, वो क्या चीज उसके इक्विवेलेंट होती है। तो जैसे होम मिनिस्ट्री का काम है लॉ एंड ऑर्डर, तो क्या हमें दिखता है कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी लॉ एंड ऑर्डर है? कैन यू गिव सम एग्जांपल दैट के लॉ एंड ऑर्डर के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, होम मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए लॉ एंड ऑर्डर के एग्जांपल बताइए अगर कोई। जैसे होम मिनिस्टर ने कुछ लॉज बनाए हुए हैं, आजकल भी कुछ लॉज नए नए आ रहे हैं, तो ताकि जो भी कंट्री है वो प्रॉपर्ली चल पाए, कोई उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए होम मिनिस्ट्री क्या लॉ एंड ऑर्डर पास करती रहती है। इस तरीके से क्या ऐसा आपको लगता है कि यूनिवर्सल में भी कोई गवर्नमेंट है जो ऐसे कुछ लॉ ऑर्डर्स बना रही है या कुछ है लॉ एंड ऑर्डर्स उसमें? यू कैन गिव सम एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैफिक लाइट को अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें चालान भरना पड़ता है, तो ये एक हमें दिखता है देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस बाय द गवर्नमेंट। ऐसे ही कोई और एग्जांपल अगर आप सोच सकें होम मिनिस्ट्री द्वारा बनाए हैं, यू कैन टाइप इन चैट और या आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। Gaurav Prabhu, you'd like to share something?
प्रवीण प्रभु आप बता भी सकते हैं, आई थिंक यू आर टाइपिंग। You can unmute yourself. Are you able to unmute? Yes. Yeah. एक्चुअली हरे कृष्णा, मैं सोच रहा था ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट के बारे में बताना है क्या अपना इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बताना है, लॉ एंड ऑर्डर? यूनिवर्सल गवर्नमेंट के बारे में किसी के बारे में भी बता सकते हैं, दोनों के बारे में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो यूनिवर्सल में एक्चुअली क्या है कि जो अभी जैसे पाकिस्तान के लिए एक ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखने के लिए कोई एक एजेंसी है जो यूनिवर्सली ऑपरेट करती है किसी कंट्री को, मतलब ब्लैक लिस्ट में रखना है कि ग्रे लिस्ट में रखना है। वो बहुत सारा उसका डाटा लेती है, फिर उसका स्टडी करती है, रियली टेररिज्म को अफेक्ट कर रहा है क्या, सपोर्ट कर रहा है कंट्री, क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट पे रखती है। उसका नाम समथिंग एप्सा समथिंग है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे जी। और इसी तरह से अलग अलग है, जैसे अभी यूनो भी है, जी। जो तुम्हारा ओवरऑल कहीं पे वार हो रहा है तो उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं सभी का, मतलब एक यूनानिमस ओपिनियन होता है, उसके बाद फिर वो वार करना है कि नहीं करना उसके ऊपर डिसीजन देता है। तो वो ऐसे 2-3 एजेंसीज है बेसिकली मेरे दिमाग में, बाकी पता नहीं और क्या क्या है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा इसको मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ, सॉरी इसको सही से नहीं बता पाया। सो ये जो है ये यूनिवर्स की गवर्नमेंट है, प्लैनेट की नहीं है, अर्थ की नहीं। ओके ओके इन यूनिवर्स, सो वी सी सम लॉज इन यूनिवर्स। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं लॉ ऑफ कर्मा, ओके 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 ओके, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा व्हिच इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, नॉट ओनली टू ह्यूमंस बट टू एवरीवन। जैसे कि अगर हम होम मिनिस्ट्री में अगर हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, अगर कोई चोरी करता है तो उसको क्या मिलती है, उसको सजा मिलती है, गेट्स प्रिजन, राइट। सिमिलरली इफ वी डू बैड इन आवर इफ वी डू बैड देन व्हाट वी गेट इज अ लॉ ऑफ कर्मा। तो हमें बैड कर्मास का हमें उसी के हिसाब से वो मिलता है, एंड विल सी। तो इसी के बेसिस पे अगर आप कुछ और एग्जांपल सोच सकते हैं और भी, प्लीज कंट्रीब्यूट। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, सप्लाई मेडिसिन फॉर डिजीजेस, ये हमारी गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। तो क्या हमें ऐसे यूनिवर्स में कुछ ऐसे दिखता है कि जो मेडिसिन है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मेडिसिनल हमें दिखती है, कुछ ऐसी चीजें यूनिवर्सल में? एक्चुअली ये मेडिसिन से अगर बात करेंगे तो यूनिवर्स में हमें डायरेक्टली कोई चीज दिखती नहीं है, लेकिन डेटा से कि अभी ये सनलाइट है, सनलाइट में हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना, ये हम सबको पता है ना। अगर हम दिन में हम कहीं पे सनलाइट में बैठते हैं तो विटामिन डी ऑटोमेटिकली मिलता है, उसके हिसाब से अपना बोन स्ट्रांग होता है। तो ये यूनिवर्सल चीजें जो है कहीं पे लिखी हुई नहीं बेसिकली, लेकिन क्या है हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है थ्रू स्क्रिप्चर्स, थ्रू लिटरेचर, या फिर थ्रू डिस्कशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बेसिकली। यस, थैंक यू, बहुत ही सही, बहुत ही आपने अच्छा बताया है। और अभी जैसे दिवाली मनाई है तो रामायण में एक जगह आती है, एक कथा है, उसके अंदर आई एम श्योर आप सबने उसके बारे में सुना होगा, एक यूनिवर्सल मेडिसिन थी जिसने लक्ष्मण को बचाया था, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी। Herbs. So herbs are there. So industrial and domestic water needs जो है ये सप्लाई करती है म्यूनिसिपैलिटी। तो यूनिवर्सल में हमें देखिए हमारे ये जो वाटर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल नीड्स हैं, कौन कंप्लीट पूरी कर रहा है, किसके थ्रू हमें मिलती हैं ये? एनी गेसेस? Write in a chat. चैट में लिख सकते हैं, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जितना हम इस पे चर्चा करेंगे उतना ही अच्छा है हमारे सबके लिए। हम सबको एक दूसरे के बारे में हमें पता चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। And also जब हम किसी चीज में डिस्कशन करते हैं तो it हमारे माइंड पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, हम ज्यादा देर तक याद रख पाते हैं उन सब चीजों को। So it also helps. हमारी भी लर्निंग होती है। अभी जैसे प्रवीण प्रभु ने बताया कि देयर इज एस्बा एंड अदर्स व्हिच आर ट्राइंग टू डू ग्रे लिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो हमें उससे भी पता चलता है अदर कम। प्रीति माता जी वांट टू शेयर कि हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है वो हमें वाटर सप्लाई कैसे दे रही है? एनी गेस? तो हमारे यहाँ म्युनिसिपैलिटी से आ रहा है, तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमें कैसे दे रही है? थ्रू रेन दे रही है, मतलब yes, through rain. थ्रू रेन, यस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वेलफेयर, इसका देखिए क्या काम है, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क फॉर द फिजिकल वेल बीइंग। तो इसी का हम कुछ यूनिवर्सल में देख सकते हैं, कुछ है ऐसा? प्रीति माता जी, सुरभजीत प्रभु, नीता माता जी हैं, प्रदीप खन्ना प्रभु जी।
यस प्रीति माता जी, आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अपने आप को। नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई भी गेस चल सकता है। देखिए, कोई सही आंसर, कोई गलत आंसर नहीं है। क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं उनके बेसिस पे देखिए क्या आता है। What are the answers here? And we'll see some of these. Home Ministry, law and nature, law and order. So similarly, we see laws of nature. और ये social. देंगे वही आप काटेंगे ना। ये बहुत ही कॉमन सा सेइंग है। सो जैसे कि है इलिसिट सेक्स है तो उसका रिजल्ट एड्स है, स्मोकिंग है तो उसका रिजल्ट कैंसर है, ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं किसी को तो उसका लिवर प्रॉब्लम्स है, टबैको है तो ब्रोंकाइटिस है। ये सारी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर्स है कि एक अगर आप गलत काम करेंगे तो उसके साथ आपके पास एक जो है उसका आपको यू हैव टू पे फॉर दैट वन। सो दीज आर द वे the people can pay for that. Similarly, like there is a government of a country which supply medicines, and the universal government also give Ayurvedic herbs. And देखिए, ये herbs सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक के लिए है। And I'll share something on this. मैंने शायद पहले भी बताया था ये वाला कि जब मैं छोटा था, I saw जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जब उनको अगर कोई तकलीफ होती है, I saw him eating plants. एक पर्टिकुलर प्लांट वो अपने आप ढूंढता है और उसको खा रहा है। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी कि ऐसा कैसे भाई, हमने तो कभी सुना नहीं है कि भाई जो डॉग्स हैं दे ईट प्लांट्स। व्हेन आई सॉ देन वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर वेटनरी, ही टोल्ड मी, ही सेड कि देखिए, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो उनको पता है कि उन्हें क्या खा के वो ठीक हो जाएगा। एंड देयर आर हर्ब्स नेचुरली अवेलेबल जिनको खा के वो अपना पेट ठीक कर लेते हैं इफ दे हैव प्रॉब्लम्स। So the Ayurvedic herbs are there for every living being. Industrial and domestic water need supply and municipality. And ये देखिए, यूनिवर्सल में जो गवर्नमेंट है वो इसको हमें दे रही है थ्रू रेन्स। कि किस तरीके से सॉल्टी वाटर है, अगर हम समुद्र में अनलिमिटेड वाटर है बट हम उसको पी नहीं सकते, और किस तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया है कि थ्रू रेन्स जो है रिवर में पानी आता है और रिवर्स में जो है उसके थ्रू हम लोग पानी लेते हैं। अदरवाइज हम जो समुद्र है उसका खारा पानी नहीं पी पाते, बट जो रेन वाटर है दैट इज सो प्योर दैट वी कैन कंज्यूम। इट इज सो नाइसली अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वेलफेयर जो है, सप्लाई फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल, मिल्क फॉर द फिजिकल वेलबींग। Similarly, the universal government also gives us air, water, grains and milk, hawa, pani, khadya and doodh, all supplied through mother nature. And God is the father. Nature is a mother. A mother cannot produce anything without father. भगवद गीता में भी भगवान है अहम बीज पिता, है ना, बीज देने वाला पिता कौन, मैं हूँ। सो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो है ये सब चीजें क्या है, मदर नेचर दे रही है, और फादर जो गॉड है वो फादर है, जिसकी हेल्प की वजह से जो है मदर नेचर है हमको ये सारे एयर, वाटर, ग्रेन एंड मिल्क दे रही है। Yes. So we have next brainstorming. Now I think आप सबके लिए थोड़ा सा गेस करना इजी हो गया होगा कि हम कंपैरिजन देख लिया किस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट को यूनिवर्सल गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग है, एंड यूनिवर्सल गवर्नमेंट। एनी गेस हाउ कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमें कैसे सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट? आप चाहे तो चैट में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। Yes, Praveen Prabhu, you want to say something? Yeah, I think it is known to everybody. Sun is the handling Minister of Electricity and Lighting, basically. Yes. So sun and moon are there. Yes. And finance ministry, currency or wealth. Lakshmi ji is there actually. Okay. जी हाँ, Lakshmi ji is there. But what else that what we see? Nature is supplying. Nature is supplying. यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? आप कुछ गेस करिए। अभी एक डेट भी गई है जिसमें बहुत लोग कुछ कुछ खरीदते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट फर्दर। धनतेरस पे जी, क्या खरीदते हैं माता जी धनतेरस पे? बर्तन,
Okay. ज्वेलरी Yes. लोग यही है ना. Like by the Metals and देखिए ज्वेलरी में नॉर्मली सोना. So हाँ. gold is given. So currency देखिए हमारे भी जो है currency जो हमारे हम भी जो कोई भी सरकार जो नोट भी छापती है वो गोल्ड से छापती है. gold and कितना silver. गोल्ड रिजर्व है उसका रेशो एंड देन दे कैलकुलेट समथिंग उसके बेसिस पे. तो सिमिलरली वी सी द यूनिवर्सल गवर्नमेंट गोल्ड, जितने भी आपके प्रेशियस मेटल्स हैं एंड रूबीज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सल गवर्नमेंट. हेल्थ मिनिस्ट्री दे टेक केयर ऑफ अवर हाइजीन एंड सैनिटेशन. तो ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट में देखिए कहाँ से आ रहा है हमारे पास हाइजीन एंड सैनिटेशन. hygiene. आप आगे के पॉइंट्स भी सोच सकते हैं. Yes. दैट इज ओके. डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रिवॉर्ड्स फॉर बेस्ट सिटीजन. हम 1 मिनट का समय ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं. This is nice. Actually, brainstorming. I can say something. Hygiene and sanitation, I think this is handled by our atmosphere basically. Our air is continuously purified. Very so nice. I think, yeah. Sujeet Prabhu ने भी Within लिखा atmosphere. sunlight and water. Right, yes, sunlight and water. Very nice. And then सुरजीत प्रभु ने पहले भी लिखा था उसके पिछले वाले के लिए गोल्ड. सॉरी सुरजीत प्रभु, मैं वो चार्ट नहीं देख पाया था उस समय. बट यस, दैट इज आल्सो राइट. ओके. एजुकेशन ministry. एजुकेशन मिनिस्ट्री तो अभी हम कर भी रहे हैं. देखिए वी आर डूइंग दैट ओनली. Self circulation. So Sujeet Prabhu is saying about I think They are getting purified. yes, hygiene and sanitization or protection from danger basically. Air is purified by itself by circulation. Yes. Right. We'll wait for 30 more seconds to guess. Then we move into the see that what scripture says. Nature is for education. Surajit Prabhu. Okay. Yes, nature is also. Yes. We'll see how the education ministry is there. Best. As citizens. Okay. और समय समाप्ति की घोषणा. चलते हैं इसके अंदर देखते हैं that how we can see the universal government is supplying to each of these departments. देखिए जो हमारा जो material universe है उसमें we need government to do certain, उसके अपने roles हैं, regulations हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं भगवान की तो हम कहते हैं कि ऐसी कोई गवर्नमेंट तो कोई है ही नहीं. यहाँ पर आपको हर चीज के लिए लॉज चाहिए, आपको डिपार्टमेंट्स चाहिए, उनको उनके काम करना होता है. लेकिन जब कोई यूनिवर्सल आता है तो कहते हैं बाय चांस हो गया सब कुछ. और यहाँ देखिए कैसे है. मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, सन एंड मून. ये बिल्कुल हमने सही जवाब दिए. देखे इसके. फाइनेंस मिनिस्ट्री करेंसी और वेल्थ को देखती है. तो हमें मिलते हैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट से गोल्ड, सिल्वर, नवरत्न एंड प्रीशियस ज्वेलरीज, डायमंड्स फॉरएवर, उसकी ऐड भी आती है. Then we have sun and rain. Hygiene और वो जो है sun and rain keeps cleanliness. अगर कोई जगह बहुत ज्यादा फिल्दी प्लेस भी है तो वहां पर भी अगर सनलाइट पड़ती है तो वो उसको सैनिटाइज कर देती है जगह को. ना सन इज वेरी गुड सैनिटाइजर. कि और कहा भी जाता है कि अगर यहाँ पर सन नहीं है तो वहां पर जिससे हैव अ लॉट ऑफ स्मेल और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जर्म्स जनरेट हो जाते हैं. व्हेन सन कम इट ऑटोमेटिकली गेट सैनिटाइज्ड एक्चुअली. देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री, यूनिवर्सल गवर्नमेंट हैज गिवन अस ओजोन स्फीयर, जो हमें वैसे ही प्रोटेक्ट करता है लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ. एंड वी ऑल नो कि जो हमारी जो अर्थ की जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. बट अदर प्लैनेट्स, दैट्स वेयर वी सी देन बिकॉज ऑफ दैट्स नॉट देयर, सो वी सी डिफरेंट थिंग्स देयर. देन एजुकेशन मिनिस्ट्री में देखिए हमारे पास वेद है, बाइबल है, कुरान है. So we can know about universe through these Vedas also. So education का भी department is being handled. Rewards for benefits, best citizens, and universal government ने जो दिए हैं benefits of yoga, meditation, and for those who follow God's laws and scriptures. So we'll take a pause and see if there are any questions. कोई question या कोई टिप्पणी?
ओके, सो हम आगे चलते हैं. सो हमने इससे क्या सीखा? What did we learn from this exercise? The universe we are living is in control, is owned and controlled by Supreme Lord. तो ये जो जगत है, ये जो है, ये भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है और उन्हीं का है. हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे हमें किसी कंट्री में जाते हैं, हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग सो सिस्टमैटिकली, ट्रैफिक बहुत कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग इज सो कंट्रोल्ड, तो हम बोलते हैं कि ऐसे हाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है. तो इसी तरीके से अगर हम अपने नेचर में भी कह रहे हैं कि हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है, कि जैसे हम इवन सीजन्स को भी देख लेते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं, राइट? कि विंटर्स आएंगे, फिर समर आएगी, फिर रेनी सीजन आएंगे, देन अगेन दिस इज कीप ऑन गोइंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स. तो अगर ये चीजें नेचर बाय नेचर भी जो सिस्टमैटिक चल रहा है, तो इट मींस दिस मींस somebody is there, some government is there which is helping to do all these things very systematically and very properly actually. Yes, just as there is a prime minister for any government, similarly there is the Supreme Lord who is the presiding authority of the whole universe. Next, when we ignore the laws of any government or prime minister, one invites punishment. Similarly, by ignoring God and the laws of nature, modern man is inviting more and more sufferings in this world. The sufferings we undergo are proof that we are going against the will of God, and some steps need to be taken to rectify our wrong mentality. The reform is to give up selfish, exploitative, enjoying, grabbing approach and to adopt the selfless, extending, serving and giving nature. हम इसको हम easily ले सकते हैं, किस तरीके से हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर सो मेनी इयर्स, और उसका हम रिजल्ट देख सकते हैं कि अभी भी जो इवन जो कोरोना भी फैला है, वो क्या है, हमने किसी ना किसी तरीके से नेचर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये वायरस जो है बहुत जनरेट हुआ है और फैला है वो वाला. सो हम देख सकते हैं कि हम कहीं पर भी जो लॉ अगर चेंज करने की या अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाउ इट इज इफेक्टिंग अस ओनली. So let us continue and read further from the book that we were doing. Okay. Hare Krishna. And we continue. तो अभी तक तो हम लोगों ने ये जैसे सपोजिटली किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, बट उसका अगर रूट कॉज मिल जाता है, तो हम उस वो डॉक्टर जो है वो रूट कॉज पे काम करता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई है, तो इसको इस चीज की अगर मेडिसिन दे देंगे, जो भी इसके रिजल्ट मिल रहे हैं उसको वो रिजल्ट मिलने बंद हो जाएंगे. तो इसी तरीके से अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सफर कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम सफर कर रहे हैं नेचर को एक्सप्लॉइट करके जिस भी तरीके से, तो अगर हम ये जान लें कि हम सफर क्यों कर रहे हैं, हमें कॉज पता चल जाए, उसका रूट कॉज पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस रूट कॉज पे वर्कआउट कर सकते हैं. सो नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस सफरिंग एक्चुअली. If anyone who would like to read, they can please raise their hand या chat पे लिख सकते हैं, and then we'll ask them to read. Anyone who would like to read? Okay, I'll read. What is the cause of suffering? आइए जानते हैं suffering का cause क्या है. Why should God, the Supreme, gives us suffering if He is in an all-loving Father? Suffering is caused not by God, but by our own desire to enjoy separately from God. A child who wants to leave the safety of his parents' hand and cross the busy road alone will undoubtedly feel frightened by the huge cars and trucks making screeching sounds as they go by. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर कि किस तरीके से जो बच्चा है वो जिद करके अपने माँ बाप का हाथ छुड़ा के उसे लगता है कि मैं खुद ही अकेले क्रॉस कर सकता हूँ ये रोड, और वो जो बिजी रोड पे वो निकल पड़ता है अकेले, एंड देन ही फाइंड इट आउट कि इट्स सो फ्राइटनिंग, कितना डरावना है कि इधर उधर से इतनी बड़ी बड़ी ट्रक आ रहा है और उसको मैनेज करना नहीं पता चल रहा है, उसको यही समझ में आ रहा कि मैं इस रोड को क्रॉस कैसे कर सकूं.
तो इसमें गलती क्या है? माँ बाप की नहीं है। माँ बाप तो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे का हाथ बहुत अच्छे से पकड़ के रखे, बट बहुत जिद करके किसी ना किसी तरीके से अगर बच्चा हाथ छुड़ा लेता है तो इसमें गलती कहीं ना कहीं बच्चे की भी है। So यहाँ देखिए यही बताया गया है that one time at one place we say that he is all loving father and why we are suffering. But ये उनका नहीं है, ये हमारा अपना desire था कि हम उनसे दूर जाके we wanted to enjoy. That is where, and the example is given like a child who leaves the safety hands of the parents. And if we live our life in harmony with God, like a citizen living in harmony with the state, then we can certainly achieve happiness. यानी कि जैसे कि अगर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होता है जो कानून को समझता है, कानून के साथ ही चलता है, स्टेट के डिफाइन गए हुए लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो ही इज हैप्पी, देयर विल नो ट्रबल फ्रॉम गवर्नमेंट टू हिम. आजकल में देख सकते हैं हालांकि मास्क इज कंपल्सरी, तो वो गवर्नमेंट ने रूल जो निकाला है वो अपने लिए नहीं निकाला, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं निकाला. उन्होंने ये इसलिए निकाला है कि अगर मास्क पहनेंगे देन देयर विल बी सम चांसेस दैट दिस डिजीज को स्प्रेड करने से रोका जा सकता है. तो जो लोग उसको मान लेंगे देन दे विल बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल. जो नहीं मानेंगे दे हैव टू सफर फॉर द बोथ साइड. इट मे पॉसिबल कि वो मास्क नहीं लगा रहे उनको डिजीज भी हो जाए, और इट मे पॉसिबल जो लॉ जो गवर्नमेंट ने जो फाइन रखा है उसको वो भी पे करना पड़े. तो इट इज लाइक कि अगर सिटीजन हार्मनी के साथ रहेगा गॉड के साथ, देन इट इज बेटर एंड ही विल बी हैप्पी इन दैट केस. Then we read, originally we are all servants of God. It is very natural for us to love him and serve him. जनरली जब हम servant नाम सुनते तो बड़ा अजीब सा दिमाग में आता है कि हम कैसे हम, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के नाम के आगे दास और दासी लगता है. सो वी फील वेरी ऑकवर्ड कि ये ऐसे नाम क्यों है. बट अगर कोई सपोजिटली जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका पीए है, ही इज सर्विंग एक्चुअली पीएम है ना. अगर वो भी क्या है, उसका सर्वेंट है, बट हाउ प्राउड ही फील्स दैट वन. सिमिलरली अगर हम भगवान के सर्वेंट बन जाएंगे, जो कि हैं हम लोग, सो अगर हम वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे तो वी विल बी आल्सो बी वेरी हैप्पी इन दैट केस. Yes. So अब इसमें आता है कि we are all servants. देखिए, servants of God, it's a very bold statement. Do we feel that we are servant? क्या हमें लगता है कभी भी that we are servant? Forget about abhi. Let's forget that we are talking about servants of God. But in our life, in our day-to-day activities, do you actually or we actually feel that we are servant? आप chat box में लिख सकते हैं yes, no, maybe, sometimes, whatsoever. So we will just keep on waiting. Yes, Mataji, he was saying something. प्रीति Mataji was saying something. नहीं, हम सर्वेंट बन के रहते ही नहीं है ना. हम तो उनके साथ भी जिद कर लेते ना, आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, आप तो ऐसे, तो हम कहाँ दास हुए. हम बल्कि अपना ऑर्डर चलाने में लगे, अपनी इच्छा पूरी करवाने में लगे रहते हैं. Okay. Prabhu has written something. Servant of people and indeed God. Okay, we are servants of. Okay, Praveen Prabhu is saying we are servants of people and indeed God. Okay. Any other thoughts? Anyone else who feels के I am a servant? क्या हम ऐसा सोचते हैं या हमें नहीं लगता कि हम servant नहीं हैं? Yes, Pradeep Prabhu, you want to share something? Problem. Sanjeev Prabhu. Okay, no problem. So देखिए, जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा सर्वेंट, मैं आई एम सॉरी, मैं तो भाई घर में कमा के ला रहा हूँ, हाउ कैन आई बी सर्वेंट? या आई हैव ऑल थिंग्स व्हिच आर गिवन टू बी विद माय फ्रॉम माय पेरेंट्स, हाउ कैन आई बी अ सर्वेंट? बट लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ अपने, आई एम सर्विंग माय पेरेंट्स आल्सो, बट आई कुड नॉट रियलाइज. Serving in office also. And I am serving in office. देखिए, I'm serving my boss. My boss is serving his boss. His boss is serving his boss. And similarly we see that as we move up, हमें लगता है okay, we are serving. Then there is a collector होता है, हम कहते हैं collector तो collector बड़ा हो गया, but he is also serving his boss.
Then there is a minister. Minister जाता है prime minister. Prime minister हो गया president. But the president is also and prime minister. They are also serving the people of the country. Okay. Surojit Prabhu has written. Let me read. Servant means to follow all orders of the owner, but we do not follow the orders of God, but we should try for our benefit. Correct. It is, this इसमें लिखा है कि it is very natural for us to love him and serve him. तो जहां पर भी serving होगी वहां पर loving होगी. कल ही हम एक statement सुन रहे थे. What was the statement? That if you love, it means you are serving. ना जिसको आप जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो what you are doing, you are serving them. जो भी उनको अच्छा लगता है बना के देने की कोशिश करते हो उनके से. Why you are serving them? Out of love, right? Similarly जो हमारा relationship है, it is not like एक formality का relationship नहीं है भगवान के साथ. It is about a love actually. We love God. When we start loving a God, then we automatically start serving. है ना. जब हम किसी को अगर बोल रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं तो हम कैसे शो करते हैं उसको? By serving them actually. So Shastra says that Jivara Swarup hoye Krishna Nitya Das. Krishna Nitya Das. That we are the servant. जीव का जो स्वरूप है वो है दास. भगवान कृष्ण के दास का स्वरूप है उनका. So that is why it is very natural for us to love him and serve him. Owing to our desire to enjoy separately from him, we have come to this world, leaving our original home, the spiritual world. As we have turned away from God, we are experiencing varieties of suffering. तो इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक लीफ है ट्री की. जब तक वो लीफ जो है ट्री के साथ कनेक्टेड है वो बिल्कुल हरी भरी रहती है और फ्लरिश करती है. और जैसे ही वो ट्री से अलग हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो सूख जाती है. इसी तरीके से हमारी कंडीशन है. जब तक हम भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे, वी जस्ट विल एंजॉय इट फुल. और जैसे ही हम अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं तो हम क्या करने देते हैं? वी स्टार्ट सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली. Like Ravan situation. Very strong words. Ravan wanted a kingdom of God without God. देखिए हमारी जो सिचुएशन है वो रावण के जैसे है. हम कहेंगे नहीं मैं रावण कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो कोई सीता का हरण नहीं किया है. But see what the situation is. He wanted a kingdom of God without God. And what हमने भी यहाँ देखा है, हम कहते हैं राम राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन राम नहीं चाहता है कोई घर में. घर चाहते हैं राम राज्य बन जाए, हमारा घर राम राज्य की तरह हो, लेकिन भगवान को घर में लाना नहीं चाहते हैं. So what Ravana also did, he wants to enjoy Sita, but he don't want Ram actually. That's why he said कि राम जो है kingdom चाहता है भगवान का, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं. So इसी तरीके से we want to have a lot of money, but we don't want to worship the Lord actually. Our daily life situation nowadays. When we give our nature of being servant and cooperator of God's plan and try to foolishly become the controller, competitor and enjoyer, then we invite unlimited suffering. देखिए यहाँ पे फिर से again some strong words and very powerful. Yes, serving is a dharma of a human and it is a basic nature. Yes, actually serving is a dharma है सारे human being का. हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को सर्व कर ही रहे हैं. जो भी है, कोई अपने आप को सर्व कर रहा है तो कोई किसी और को सर्व करेगा. कोई जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, कोई कह रहा है मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है और मैं कहीं जॉब भी नहीं करता, मैं घर पे अकेला रह रहा हूँ. तो व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग, ही इज सर्विंग हिमसेल्फ आल्सो. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर कोई सर्व कर ही रहा है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली अ बेसिक नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. जैसे प्रभु जी ने बिल्कुल सही शेयर किया है, दैट सर्विंग इज द धर्म ऑफ ह्यूमन. That is our dharma. Our prescribed duty is serving. And then we see that okay, that when we do not want to be servant and do not want to cooperate and try to become controller, competitor and enjoyer. And हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था that we are not the controller. क्योंकि जैसे हमने बात करी थी कि अगर हम एक बस स्टॉप पे भी खड़े हैं, लेकिन बस तो अपनी मर्जी से आती है. If you are the controller, then you wish the bus is here, then the bus should be there. लेकिन ऐसा होता नहीं है.
Simply by turning towards him and obeying his good instruction given in the scripture, we can again reinstate ourselves in the position of everlasting happiness. So हमें क्या करना है, जैसे हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो लॉज बने हैं उसको बस उसके साथ कॉपरेट करना है, और जैसे ही हम कॉपरेट करना शुरू करेंगे जो कि स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, then we are getting back to our happiness which we actually are searching for. Now let's read. Returning to harmony. The symptom of suffering is good. अब बताइए क्या symptoms of suffering good होते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं yes, no. Yes, we would like to see answers in chat box. कृपया करके chat box में लिखिए. No, okay. Praveen Prabhu says no. The symptoms of sufferings are not good. Okay. आप किसी को ऐसा लगता है कि symptoms of suffering are good? I also say no. Okay. Yes. Okay. आइए हम आगे देखते हैं how it is being looked at. The symptoms of suffering is good because it gives us opportunity to look at the root cause. Every suffering has a purpose behind it. A thief is beaten so that he gives up his stealing propensity. When our bodily system is disturbed, it gets heated up, showing fever, bitterness in tongue, restlessness of mind and body, so that we can take immediate remedial action. इन्फेक्शन हो जाता है तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है उसका कि फीवर है, राइट? तो जैसे ही फीवर होता है तो हम जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि ये फीवर क्यों हुआ, क्या कॉज था इसका, देन वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन एक्चुअली. अब देखिए अगर सिम्टम्स नहीं होंगे और बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा. So इसीलिए it's written that symptoms of suffering are good. So whenever, thus these symptoms of bodily heat or pain are not bad, as they intimate us at the appropriate time to take action for rectifying the bad situation in the system. तो कभी-कभी ऐसे सुनने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो आपको कोई सिम्टम ही नहीं शो हुए, अगर पहले पता चल जाता तो हम इस बीमारी का इलाज, मतलब कि इस बीमारी का इलाज था, बट अब इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच गई है कि इसका इलाज ही नहीं है. सो क्योंकि आपकी बॉडी ने कोई सिम्टम नहीं दिखाया, सो इट इज ऑलवेज गुड कि हमारी बॉडी सिम्टम्स दिखा रही है जिसकी वजह से हम उसका सॉल्यूशन सर्च आउट करने लगते हैं. Similarly, we find that in this world, despite our prolonged endeavors for happiness, suffering persists. This indicates that we are in a foreign atmosphere. बड़ी अच्छी सी फोटोग्राफ बनी है कि वो फिश है और फिश को चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन में और कितना भी अच्छा खाना वाना खिलाया जाए लेकिन उसको पानी में नहीं रखा जाए तो उसके लिए वो कंडीशन सही नहीं है, बिकॉज ही इज इन अ फॉरेन एटमॉस्फेयर. ऐसी कंडीशन हमारी है कि हम इस सृष्टि में रह रहे हैं लेकिन दिस प्लेस इज नॉट फॉर अस एक्चुअली. That means that we are in the foreign atmosphere. A fish out of water with all comfort and luxuries can never enjoy, nor can a human man feel as safe and comfortable high up in the airplane or in the midst of vast Atlantic Ocean as much as he feels on land. Thus, our place is not in this world where there is danger at every step, but in the spiritual world that is beyond this world of suffering. When students stay in hostel far away from their hometown, they feel homesick because of being away from our real world, the spiritual world, and being away from our real planet, our eternal friend and master, God. In order to become free from suffering, we have to learn the art of living in harmony with God's teachings. Then we can easily become happy even while being in this world and can eventually be reinstated in our original position in the spiritual world. The Bhagavad Gita teaches us about the purpose of life and the purpose of this creation, and also tells us about the right and wrong action, exactly like a manual that shows us how to use particular equipment. So यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए जो भगवद गीता है, it's a manual for the human mankind to tell us that what is the purpose of our life and how we can live in harmony
even in this world, that we can become happy. Even in this world with all the miseries and everything happening, but if we follow the injunctions of the Lord's script, of the scriptures, the Bhagavad Gita, then even in this lifetime we become happy and we can go back to Godhead. So now some simple steps for harmony our life with the God and nature. तो जैसे हमने कहा कि सफरिंग क्यों है, हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि रूट कॉज क्या है. हमने सिम्टम्स कहा कि हम लोग हमें हर स्टेप्स पे डेंजर है हमारा, दैट इज हमारे सिम्टम्स हैं. और जो उसकी रूट कॉज है, वो रूट कॉज ये है कि हम लोगों ने क्या है, भगवान से अलग होकर हम इस नेचर को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं. सो अगर हम भगवान के साथ हार्मनी में अगर करेंगे, देन इट इज इजी फॉर अस टू सर्वाइव एंड विल बिकम मोर हैप्पी. सो अब हम वो कर कैसे सकते हैं? हम लोगों को रेमेडी मिल गई है, कॉज की जो प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी मिल गई है, बट हमें वो कैसे एग्जीक्यूट कैसे करनी है, उस मेडिसिन को लेना कैसे, नाउ विल डिस्कस दैट अपार्ट. We have got the information, हमें knowledge तो हो गई है, लेकिन अब उसके हम थोड़े इसमें practical tips हैं which we can actually apply in our day-to-day lives. And as we apply, then we have realizations, and then we will see that how we are harmonizing with the God. So, one, count the blessings of God in your life and thank the Lord for all that He has done for you. Pray to Him to offer you love, mercy and service. आजकल तो वैसे भी अगर हम बचे हुए हैं, अगर हमें बीमारी नहीं हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, so we can daily basis we can thank the God that we are safe now. By your mercy only we are safe now and sitting at a home safely and just able to serve nicely. And anything good that happens, then also we can thanks to God. We can just count the blessings that we are getting. Chant the holy names of the Lord every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हमने अपने जो सत्र था 7-day session, उसमें भी हमने इसके चर्चा करी थी that how chanting of holy name is so important and it is the only mantra which can take us beyond this sufferings. So we should chant this. And soon we will also have a special class on chanting and we are trying to organize it. We'll do and we'll learn more about it. Thank the Lord before eating your food. I know कि पहले स्कूल्स में सिखाया जाता था कि आप जब भी खाना खा रहे हैं तो आपको भगवान को थैंक यू करना चाहिए कि भगवान की मर्सी की वजह से आप लोगों को ये जो खाना है खाने को मिला है. बट आजकल हम देखते हैं कि this habit is not been inculcated in anybody in schools and even at house also. But अगर हम ये habit inculcate करें कि जब भी हम खाना बैठ रहे हैं, we just thank कि हाँ yes we getting this food because of your mercy only. Because हम देख सकते हैं कि पूरे all over world में कितने सारे लोग हैं जिनको रोज खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पाता है properly, and how they are suffering because of so malnutrition and other things also. Remember the Lord as soon as you get up in the morning and ask the Lord to help you get one step closer to Him that day by extending your services to Him. So we can get closer to Lord by serving Him. And here we are asking the Lord to allow to help us to come closer to Him और हम उनको अच्छे से serve कर सकें. Tell one of your friends about what you have learned from Bhagavad Gita and teach him her mantra meditation. This is very nice actually. भगवद गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन को 18th chapter में कि जो ये मुझे सबसे प्रिय कौन है, उनको उसकी डेफिनेशन बताई भगवान ने. अर्जुन को कहा कि अर्जुन जो ये भगवद गीता का ज्ञान जो है जो बाकी लोगों को देता है वो सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है. तो हम जब यही ज्ञान जो हमें भी जैसे हमने कुछ भी सीखा, इट इज नॉट लाइक हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया और तब हम जाएंगे सबको बताने के लिए. जो भी हम जैसे हम लोगों ने भी जो भी थोड़ा बहुत सीखा है वो हम सबके साथ जब शेयर करते हैं, then we automatically get closer to the Krishna and closer to the God, and it help us to move ahead in the path of this. So इसीलिए एक किस्म बताया गया कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को, इवन फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी आप बताते हैं कि आपने क्या सीखा और आपको कितना अच्छा लगा और उनको भी वो सब चीजें करनी चाहिए, तो it is really good that you will get the mercy of Lord also in this case. Sin is disobedience to God. Learn from authorized scriptures
and the faithful followers of God about the wrong things that should be avoided. Make a program for giving up sinful activities. This will purify your heart. एक्चुअली हम लोगों ने ये क्लासेस इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि हम लोग जनरली स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते हैं और अगर पढ़ते भी हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ आचार्यस जब हम इन स्क्रिप्चर्स को समझते हैं तो एक्चुअली हम समझ पाते हैं कि हम किस तरीके से ये जो सिंफुल एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से धीरे धीरे गिव अप करते हैं. It is not like it is by forcefully and it is by automatically. जैसे हम लोग chanting करते हैं, that is main thing is the chanting of हम जिस तरीके से धीरे धीरे चैंटिंग करते हैं तो जो भी हमारी जो टेंडेंसी है जैसे करने की वो धीरे धीरे चली जाती है हमारी सिंफुल रिएक्शन की, एंड इट्स रियली हेल्प अस अ लॉट. End of the session. So यदि कोई any टिप्पणी, any comments that anyone would like to, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग. any doubts, anything that you have. Meanwhile, we'll prepare for the Damodar Ashtakam, and we can offer the ghee lamp. Kartik month abhi chal raha hai, 30th is the last, so we will now offer the ghee lamp. Okay. आप लोग भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं. हम लोग स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स और जो आपकी लाइंस है वो दोनों शेयर करेंगे, तो आप उस जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ आएगी उसको भी ऑफर कर सकते हैं, उसको भी आप दिया दिखा सकते हैं. और अगर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सारे तो नहीं एक बार कर पाएंगे, बट आप ये सोच सकते हैं अपने माइंड में कि आज के बाद या एक हफ्ते में आप कोई भी एक चीज अपने लाइफ में इसमें से क्या इंप्लीमेंट करना चाहेंगे. तो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन द भक्ति एक्चुअली. Yes. Okay. So who wants to know the meaning of Hare in our Mahamantra? Yes. So जो हरे वर्ड है जैसे हम बोलते हैं हरा, हरा इज द नेम ऑफ अ कृष्णा, है ना. सो हरे इज अ फेमिनिन पार्ट ऑफ दैट कृष्णा एंड फेमिनिन पार्ट ऑफ कृष्णा इज राधा रानी. सो व्हेन वी आर सेइंग हरे कृष्णा मींस वी आर indicating a Radha Rani and Krishna in this case. So basically this mantra is having got 3 words, that is Hare, Krishna and Rama, which has been we just chant in that case. I hope that will answer your question. So we are praying to the basically this mantra is that we are praying to the Radha Krishna, like आज हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हम भगवान के servant हैं and we want to serve him. So this is a mantra where we are praying that we want to serve you. Please engage in your service, please. So we'll start the Damodar Ashtakam, और आप भी अगर एक दिया ले सकते हैं, and we can offer it to the Lord. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. नमामि शरांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं. नमामि शरांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं. यशोदाभियोनुखलाधावमानं परमृष्टमातां ततो द्रुतगोप्या. यशोदाभियोनुखलाधावमानं परमृष्टमातां ततो द्रुतगोप्या. नमामि सारांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले
যুগ্মং মৃজন্তাম कराम्भुज युग्मेन शातङ्क नेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्मं विजान्तं कराम्भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुशशुकं पुत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भोक्तिबाधम् नमामि सारांसा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् इति दृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् अक्षपयन्तम् तदेशिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्तां पुनः प्रेमतास्तां शतवृत्तिवन्दे नमामि सारांसा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्नं वृणेऽहं वरेषादपीह ईदन्ते गोकुरनाथ गोपाल बाला सदा मे मनश्शावीरास्तां किमन्यै ईदन्ते गोकुरनाथ गोपाल बाला सदा मे मनश्शावीरास्तां किमन्यै नमामि सारांसा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् ईदन्ते मुखं बोझमत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या ईदन्ते मुखं भोजमत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनश्शावीरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमामि सारांसा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमो देवो दामोदराय अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्ना नमो देवो दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्ना कृपा दृष्टिवृष्टति दिनं बतानु गृहाणे समामग्रमेद्धक्षिदृश्य नमामि
नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव जाद्वत् तयामचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव जाद्वत् तयामचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति शकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्ति शकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमेस्ति दामोदरेह नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै तदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्याम् नमो राधिकायै तदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्याम् नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरां सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी चल गई, बट एक चीज और हम सोच रहे थे, इज इट ओके कि हम डेली जो है भगवत गीता का एक श्लोक ग्रुप में पोस्ट करें इन हिंदी एंड इंग्लिश डेली वन along with, so we share one Prabhupada quote every day, एक DT picture, और हम एक भगवत गीता का एक श्लोक we are thinking we start posting every day. और आप अगर करेंगे ना? होगा तो देन दे कैन आस्क इन अ ग्रुप आल्सो कि अगर जो भी हम जो श्लोक शेयर कर रहे हैं किसी को क्वेश्चन होगा तो वो पोस्ट कर सकता है, तो हम उस पे फिर आंसर कर पाएंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या अदरवाइज लाइक इफ यू आर रीडिंग Prabhupada books and you have any question, you can post it in the group and we will be more than happy to get the एंड answer. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ग्रुप में देन यू कैन आस्क पर्सनली। So tomorrow we'll try to start posting one Bhagavad Gita shlok every day. So we'll go in a sequence, like we start from chapter 1 और फिर हम एक sequence में चलेंगे उसके अंदर। Thank you so much. So we'll end the class. हरे कृष्ण। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।